ایک پاکستانی کمانڈو مشرقی پاکستان میں دشمن اور غداروں سے بیک وقت نبرد آزما، حب الوطنی اور سرفروشی کی ایک لازوال داستان۔ گزشتہ ایک ساتھ سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک پر کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ایک ساتھ بلا تاخیر ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ چٹاگانگ پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد ہمیں کشتیہ اور پمبا کی طرف بڑھنے کا حکم ملا۔ کشتیہ جیسور کے شمال مغرب میں تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ریلوے جنکشن اور کئی سڑکوں کا سنگم ہونے کے باوجود عام حالات میں یہاں فوج کبھی قیام پذیر نہیں رہی۔ جب شورش پیدا ہوئی تو جیسور سے قریباً 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی میجر شعیب شہید کی کمان میں یہاں بھیجی گئی۔ یہ لوگ کوئی جنگ لڑنے تو آئے نہیں تھے، ان کا مقصد تو صرف امن و امان کا قیام تھا۔ کمپنی کمانڈر نے اپنے جوانوں کو ویری ہائی فریکوینسی اسٹیشن اور ٹیلی فون ایکسچینج کے علاوہ اکا دکا دوسرے مقامات پر تعینات کر دیا۔ جب یکدم مکتی باہنی نے یلغار کی تو میجر شعیب پر قریباً 2000 مسلح اور توپ خانے کی مدد کے حامل بھگوڑے بنگالی اور باقاعدہ افواج کے سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ ان 150 جانبازوں پر کیا گزری، ان کی کہانیاں وقت کی گرد میں کہیں کھو چکی ہیں، لیکن وہ تاریخ حریت کا ناقابل فراموش باب بن چکے ہیں۔ وہ شیر دل اپنے کمپنی کمانڈر سمیت ایک ایک کر کے سارے کے سارے مرتبہ شہادت پر سرفراز ہو گئے۔ پمبا میں بھی صرف 125 سپاہیوں کا ایک دستہ موجود تھا جس کے پاس عام قسم کا اسلحہ تھا۔ ان پر 1500 کے قریب مسلح اور تربیت یافتہ تخریب کاروں نے حملہ کیا۔ کیپٹن اصغر شہید کی کمان میں یہاں سرفروشی اور جانبازی کی عظیم داستان رقم کی گئی۔ یہ شیر دل کیپٹن اور اس کے بعد اس کا سیکنڈ ان کمانڈ لیفٹیننٹ رشید جان توڑ کر لڑے اور دونوں شہید ہوئے۔ دشمن کی تعداد کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تمام راستوں پر ان کا اتنا کنٹرول تھا کہ جب راجشاہی سے بمشکل ایک ہیلی کاپٹر کسی نہ کسی طرح گولیوں سے چھلنی ہو کر زخمیوں کو لینے پمبا پہنچا تو اسے اترنے کے لیے جگہ نہ مل سکی اور وہ واپس چلا آیا۔ راجشاہی سے بمشکل ایک مرد غازی میجر اسلم شہید 18 جوانوں کو ساتھ لے کر پمبا پہنچے۔ انہوں نے دشمن کے نرغے میں پھنسے بہادروں کو باہر نکالا جن کی آدھی تعداد شہید اور زخمی ہو چکی تھی۔ جاں فروشوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ پسپا ہوتا راجشاہی کی طرف ہٹنے لگا، لیکن ہزاروں کی تعداد میں پھیلے دشمن سے بچ نکلنا کب ممکن تھا؟ کسی نہ کسی طرح جب 3-4 روز تک بھوک پیاس اور زخموں کی اذیتیں برداشت کر کے یہ قافلہ راجشاہی پہنچا تو 143 میں سے صرف 18 جوان انتہائی زخمی حالت میں باقی بچے تھے۔ باقی تمام کے تمام میجر اسلم سمیت شہید ہو چکے تھے۔ ان واقعات کا المناک پہلو یہ ہے کہ بکھرے ہوئے غنڈوں سے کسی کو امان نہ ملی۔ انہوں نے فوجیوں سے تو جو سلوک چاہا کیا، لیکن سویلین سے بہت برا سلوک کیا۔ جس کسی پر پاکستانی فوج کے ہمدرد ہونے کا شبہ ہوتا، اس کی بہو بیٹیوں کی آبرو ریزی اس کی آنکھوں کے سامنے کرنے کے بعد انہیں اغوا کر کے کلکتہ کے بازار حسن کی زینت بنا دیا گیا۔ پچھلے 4-5 روز سے ہم صرف دشمن ہی کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی ایک طویل اور صبر آزما جنگ لڑ رہے تھے۔ کئی دفعہ اصفہانی جوٹ ملز کالونی جیسے واقعات دیکھ کر جی چاہا کہ ارد گرد کے دیہات بلڈوزر سے روند ڈالیں، شاید اسی طرح مرنے والوں کی ارواح کو کوئی سکون پہنچا سکیں، لیکن فوج کسی جذباتی درسگاہ کا نہیں، ایک ڈسپلن کے پابند رہنے کا نام ہے۔ ہم لوگ جب کبھی ٹھنڈے دل سے حالات پر غور کرتے تو ان تمام واقعات کو قدرت کی ستم ظریفی کا نام دے کر چپ ہو جاتے۔ 2 روز تک ہمارا قیام پمبا میں رہا، اس کے بعد اچانک راجشاہی پہنچنے کا حکم ملا۔ وہاں بغاوت زوروں پر تھی اور فوج صرف چھاونی تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ہمارے پاس نفری اتنی کم تھی کہ وہ بمشکل چھاونی ہی کی حفاظت کر پاتی۔ دشمن کے خلاف کارروائی کرنے یا امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس جوانوں کی کمی تھی۔ راجشاہی کی صورتحال یہ تھی کہ شہر کے تمام محب وطن لوگ مغربی پاکستان کے شہری اور وہاں مقیم فوجیوں کے کنبے پناہ لینے کے لیے چھاونی میں ڈیرے ڈالے بیٹھے تھے، جن کے گرد ہزاروں کی تعداد میں تخریب کاروں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، اور وہ لوگ روز بروز اپنا گھیرا تنگ کرتے جا رہے تھے۔
जवानों की कलील तादाद का अंदाजा यूं लगा लीजिए कि वो बमुश्किल छावनी के गिर्द अपना हिसार मुकम्मल कर पाए थे। रोजाना कोई ना कोई सिविलियन या फौजी गुंडों की जद में आकर जख्मी हो जाता और नाकारा होकर उनके मसाइल में इजाफा कर देता। इस सूरत हाल से निमटने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन तरतीब दिया गया, जिस पर 3 मराहिल में अमल होना करार पाया। घेरे में आए हुए मुट्ठी भर फौजियों और सिविलियन की मदद को पहुंचा जाए। नंबर 2, जख्मियों, खवातीन और बच्चों को यहाँ से निकाल कर महफूज मकाम तक ले जाया जाए ताकि कम से कम खवातीन और बच्चे दुश्मन की बर्बरियत की भेंट न चढ़ने पाएं। नंबर 3, शहर में मुख्तलिफ मकामात से हमला आवर होकर कमांडोज दुश्मन से शहर को निजात दिलाएं। ऑपरेशन पर अमल शुरू हो चुका था। अब मुझे अपनी कंपनी के साथ गमासपुर नामी मकाम पर एक पुल को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाना और उस इलाके का कंट्रोल संभालना था। मैं अपने 20 जवानों का दस्ता लेकर पैदल रवाना हुआ। पंबा राजशाही रोड पर हम लोग अलस सुबह पहुंचे। यहाँ फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के भगोड़ों ने पहले ही से मोर्चा बंदियां कर रखी थीं। मकामी देहातियों को वरगला कर पहले ही वो अपने साथ मिला चुके थे। मैंने अपने जवानों को 3 टोलियों में तकसीम करके एक दूसरे के ताक़ुब में आगे बढ़ने का हुक्म दे रखा था। एक मकामी बिहारी रजाकार हमारा गाइड था, जिसे इस इलाके से मुताल्लिक खासी मालूमात हासिल थी। वो हमें कच्चे रास्तों से राजशाही की तरफ ले जा रहा था। दूसरे मुख्तलिफ ग्रुप भी इन्हीं रजाकारों के ताउन से बिखर कर एडवांस कर रहे थे। इस तरह हमारा मकसद एक तो दुश्मन पर अपनी ज्यादा नफरी का रोब डालना था, दूसरे यहाँ हमें मुदाफियत की उम्मीद कच्चे रास्तों से कम थी, क्योंकि उमूमन फौज पक्के रास्ते अपनाया करती थी और तखरीबकार भी इन्हीं पर घात लगाया करते थे। मेरे पास 3 LMG लाइट मशीन गन्स थी, 2 रॉकेट लॉन्चर इनके अलावा थे। इससे पहले हमें इस बात का तल्ख तजुर्बा हो चुका था कि हल्के हथियारों के साथ दुश्मन का मुकाबला महज खाम ख्याली है, क्योंकि अब बात सिर्फ अमन व अमाल बहाल करने तक महदूद नहीं रही थी, हमारी तवक्कुआत से बहुत आगे पहुंच चुकी थी। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी के तरबियत याफ्ता कमांडोज हजारों की तादाद में मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो चुके थे। उन लोगों के पास हर तरह का असलहा मौजूद था। दरियाई रास्तों से वो लोग मीडियम तोपें तक छुपा कर लाने में कामयाब हो गए थे। उन्हें छुपाने के लिए उन्हें हजारों महफूज पनागाहें मुयस्सर थीं। ज्यादातर असलहा वो लोग देहातों में अपने हमदर्दों के घरों में छुपा देते थे। उन्हें हमारी इस कमजोरी का इल्म था कि पाकिस्तानी फौज सिर्फ तखरीबकारों से निमटने के लिए मैदान में उतरी है। सिविलियन आबादी से हमारा टकराव इंतहाई नागुज़ीर हालत ही में मुमकिन था। आम हालत में हम कभी किसी गांव में दाखिल नहीं होते थे, बल्कि अक्सर कन्नी कतरा कर गुजर जाते थे। इसकी एक वजह दुश्मन के इस मजमूम प्रोपेगेंडे के असर को ज़ायल करना था, जो वो चिल्ला चिल्ला कर दुनिया भर के कोने कोने में कर रहा था कि पाकिस्तानी अफवाज शहरियों का कत्लेआम कर रही हैं। दूसरे अपने मासूम और वरगलाए गए बंगाली भाइयों को बताना मकसूद था कि हम उन्हीं में से हैं और उनके दुश्मन को मारने का अज़्म लेकर आए हैं। अपनी इस बेजा रहम दिली और फराख दिली की हम बिलाशुबा तवक्को से बढ़कर कीमत अदा करनी पड़ी और सैकड़ों की तादाद में हमारे जवान अब तक इन मासूम और बेबस भोले भाले दरिंदों की भेंट चढ़ चुके थे। वो लोग जिन्हें हम बज़ाहिर बेज़रर जानकर छोड़ देते, हम पर फौरन किसी नए अजाब का नुज़ूल करवा देते। अक्सर ऐसा होता कि किसी मुश्तबा शख्स को कोई पेट्रोल पार्टी गिरफ्तार करके लाती तो वो आदमी हाथ बांधते हुए कस्में खा खा कर यकीन दिलाता कि वो बेगुनाह है। उसे तो जबरदस्ती मुक्ति बाहिनी ने इस काम के लिए आमादा किया था। हमारे अफसरान को उन पर यकीन आ जाता। बहरहाल वो हमारे मुसलमान भाई थे, उसे रिहा कर देते। चंद ही मिनट में उनकी निशानदही पर तखरीबकार हम पर अचानक हमलावर होते और 2-4 जवानों को मौत के घाट उतार कर अपनी राह लेते। राजशाही के बाहर ही हमें जोरदार धमाकों से अंदाजा हो गया था कि दुश्मन कितनी कुव्वत से हमलावर हुआ है। गोलों और गोलियों के धमाकों से कान फटे जा रहे थे। कुछ दस्ते रास्ते में अपना काम मुकम्मल करते हुए मैसूर फौज की मदद को पहुंच गए थे। उनमें कमांडोज भी शामिल थे, जिन्होंने यहाँ पहुंचते ही फैल कर दुश्मन को समेटना शुरू कर दिया। मैं अपने बकाया साथियों को मुख्तलिफ अतराफ में रवाना करके अपने 2 जवानों के हमराह गुमासपुर पुल की तरफ रवाना हो गया।
कुमासपुर पुल की हिफाजत के लिए 3 रजाकार वहां मौजूद थे, लेकिन इस शिद्दत की लड़ाई में उनका 303 की दकियानूसी राइफलों के साथ दुश्मन के साथ नबर्द आजमा रहने का तसव्वुर ही मुहाल था। हमारे अंदाजे के मुताबिक वो या तो दुश्मन के हत्थे चढ़ गए थे या शहीद हो चुके थे। पुल तक पहुंचने के लिए मुझे और मेरे दोनों साथियों को जगह जगह मज़ाहिमत का सामना हुआ, लेकिन किसी न किसी तरह बचते बचाते हम टारगेट एरिया में दाखिल हो गए। हम तीनों साथी 3 अतराफ से पुल की समत बढ़े, जिसके नजदीक एक मजमा लगा हुआ था। जहां मेरी आंखों ने अजीब मंजर देखा। एक रजाकार के गले में दरिंदों ने रस्सा डाल रखा था। वो उसे जमीन पर घसीट रहे थे और उसके बदन में संगीने मारकर उसे मजबूर कर रहे थे कि वो जिए बांग्लादेश का नारा लगाए, लेकिन धरती का वो सजीला बांका सबूत हर दफा पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहता था। न जाने ये अमल कब से जारी था। उसके बकाया दोनों साथियों की संगीनियों से छलनी लाशें वहीं पड़ी थीं। उनकी गर्दनों में भी ऐसे रस्से पड़े हुए थे। खून आशाम भेड़ियों ने उन्हें भी इसी तरह संगीने मार मार कर शहीद कर दिया था। ये मंजर देखकर वाकई मेरी आंखों में खून उतर आया। मैंने अपनी स्टेन गन दूसरे साथी को थमाकर उसे उसकी जगह पर भेज दिया और खुद LMG संभाल ली। गन को स्टैंड पर नस्ब करके मैंने दरिंदों को अपनी रेंज में लिया और पहले ब्रस्ट ने ही उन दोनों भेड़ियों की जान ले ली जो उस गाजी मर्द पर संगीन जनी कर रहे थे। रस्से वाला दूसरे साथी की गोली का निशाना बन गया। उसके बाद तो जैसे हम तीनों पर जुनून तारी हो गया। बमुश्किल 15 मिनट की फायरिंग के बाद हमने वहां तमाशा देखा और दिखाने वालों को कुत्ते की मौत मार डाला। दरिंदों से निमटते ही हम भागम भाग गाजी मर्द के पास पहुंचे। मेरे एक जवान ने, जिसकी आंखों से खून बरस रहा था, उसकी गर्दन रस्सी से आजाद की, उसे उठाकर बिठाया। गाजी मर्द उठकर बैठने के काबिल भी नहीं रहा था। दूसरे जवान ने जमीन पर दोजानों बैठकर उसका सर अपने शानों पर रखा। मैंने लरजते हाथों से पानी की बोतल खोलकर उसके मुंह से लगाई। बमुश्किल 2 घूंट उसने पिए और सर के इशारे से बोतल परे हटाने को कहा। क्या नाम है भाई आपका? मैंने फौजी बनते हुए कहा। खलील। उसकी जबान लड़खड़ाई। उसके आगे उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन लफ्ज उसके मुंह से न निकल पाए। दाएं हाथ से वो जमीन पर उंगलियां फेरता रहा। बमुश्किल उसने बायां हाथ उठाकर वी का निशान बनाया। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई और उसके दोनों हाथ नीचे ढलक गए। वो हमें विक्ट्री की नवीद सुनाता मौत की देवी की गोद में जा बैठा। लेकिन ये सिर्फ उसकी जिस्मानी मौत थी। असल में हम सब मर गए थे। हम तीनों, जिनके कलेजे उस लम्हे फट गए। हमारा खून जहरीला हो रहा था। पांव के नाखून से सर के बालों तक हमारे जिस्मों में आरे चलने लगे थे। कोई नादीदा कुव्वत हमें आहिस्ता आहिस्ता काटने लगी। ये काट अंदर ही अंदर गहरी ही होती गई। हमारे दिल, जिगर, मेदे, शरियानों, गरज अंदर मौजूद हर शय को मौत आ गई, लेकिन हम बाहर से जिंदा थे। मेरी हालत ऑपरेशन टेबल से उठकर भागे हुए उस मरीज की तरह हो रही थी जिसका एनेस्थीसिया ठीक से नहीं हो पाया था। मुझे उस लम्हे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे बदन में खून नहीं, क्लोरोफॉर्म दौड़ रहा है। वो आलमे होश नहीं था जिसमें हम तीनों खड़े थे। ये तो बरज़ख के आगे कोई मकाम था। हम पर असहाब कैफ वाली नींद तारी थी। हम जिंदा मुर्दा थे। मैं उनका कमांडर था, इसलिए होश भी मुझे ही सबसे पहले आया। मैंने झुककर उसकी दाएं समत देखा, जहां उसके खून में लिथड़े हाथ की बेकरार उंगलियों ने जमीन पर लकीरें खींची थीं। लकीरें नुमाया हुई। लिखा था, अलविदा पाकिस्तान। वो बद्र हुनैन का मुसाफिर था। वो 1400 साल से पाकिस्तान के लिए लड़ता आया था। वो मुराद पा गया। उसका जोग मुकम्मल हो गया। उसकी मंजिल आ गई थी। वो जिंदगी की बस से चुपचाप नीचे उतर आया। लेकिन हम अभी जिंदा थे। हमें अभी जिंदगी का संन्यास भुगतना था। हमारा बनबास अभी शायद मुकम्मल नहीं हुआ था। दोस्तों, जब कभी समंदर किनारे पिकनिक मनाने जाया करो, जब जिंदगी की तमाम रंगीनियां तुम्हारे पहलुओं से चिमटी हों, वक्त फुर्सत दे तो कभी कभी खलीज बंगाल की समत से आने वाली हवाओं के नोहे भी सुन लिया करो। उनके दामन में सफर करती रस्म खलीली की कहानियां भी सुन लिया करो। ये हवाएं आपको बताएंगी कि आतिश नमरूद में इश्क क्यों कर कूदा था। इन हवाओं ने आग को गुलजार बनते देखा है। इनकी पुकार पर कान धरो।
हमने भीगी आंखों का नजराना उसके हुजूर पेश किया, उसके मुकद्दस जस्त को जमीन पर लेटाया, उठकर खड़े हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तीनों के मुंह से एक साथ निकला, अल्लाह ने दुनिया से अपनी अमानत वापस ले ली। बेशक वो कादिर मुतलक है, जब जो चाहे कर गुजरे। पत्थर के इंसानों ने अपने बाजू आसमान की तरफ फैलाए, हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ गईं। दिल का खून आंखों के रास्ते सफर करता गालों पर बहने लगा। इलाही तेरे धुतकारे हुए बंदे तेरी पनाह चाहते हैं। सत्तारुल उयूब हमारी पर्दा पोशी कर। अर्रहमान अर्रहीम हमसे मुंह न मोड़। बहरोबर खुश्क तर के खुदा हम नाकिस हैं, हमारा इम्तिहान न ले। हम पर रोशनियों के दरवाजे बंद न कर मौला, हम तो पहले ही अंधे हैं। हमारी बसारतें लौटा दे, हमारी बसीरतें लौटा दे। बस कर या मालिक रहम कर दे। आसमान पर बादल बहुत गहरे थे, शायद उन्होंने आह को जाने की राह न दी होगी, या शायद हमारी नियतों में खोट था कि दुआएं मुस्तजाब न हुई। हम वहां से चल दिए। हमारे कानों में बदस्तूर ये आवाजें आ रही थीं, अलविदा पाकिस्तान, अलविदा पाकिस्तान। हम इन आवाजों को खूब पहचानते थे। ये थे मेरी सुनार धरती के शुहदा, जो अपने पूर्वी पाकिस्तान को अलविदा कह रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मज़ीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।